टेल मी, फॉर्मेट देखा सबने? We have done what till now? Final accounts are made due to whole and sole two reasons. What are the two reasons of making final accounts? Anyone? What are the two reasons to make final accounts? Yes. Calculating profit and loss and to know the value of business. Value of business. Calculating profit and loss and to know the value of business. All of you clear with that? Profit and loss at the end of the year, results of the business, and balance sheet. Okay, balance sheet, that is the financial position of the business. To know the profit or loss, we make two accounts. What are those two accounts? One is trading account and one is profit and loss account. To know the value, to know the profits and losses of the business, profits or loss कितना हुआ है, वो जानने के लिए we make something that is called as trading account and profit and loss account. Trading account say we come to know gross profit or gross loss. P&L say we come to know net profit or net loss, the final profit or loss for the business, right? The trading account and P&L account are made to calculate profit or loss and to know the value of business, financial position, we make something that is called as balance sheet. We make something that is called as balance sheet. Okay, that shows the values of assets and liabilities. This point we have learned. Also, we have learned that trading account or P&L account अलग क्यों बनाया? क्योंकि trading will show all the direct incomes and expense, right? And P&L will show what? All the indirect incomes and expense. Direct means what? Important. Indirect means less important. So more important incomes in your trading account and expenses in your trading account, and less important incomes and expenses in your profit and loss account. Hope that is clear. Okay. Now, there's something that you need to know about stocks. Okay. Adjustments about stocks, closing stocks and opening stocks. What about the adjustment on stock? Let's understand that. See, suppose this year, this is my trading account. This is my trading account. What do we show in trading account? All important purchase, all important expenses and important incomes, that is direct expense and direct incomes. So this year I have made purchases of say 1 lakh of rupees. 1 lakh का मैंने purchase किया है, and I have sold the goods, okay, for say 1,50,000. 1,50,000. 1 lakh का purchase किया है, 1,50,000 में sell किया है, okay. देन और एक्सपेंसेस में सपोज और कुछ नहीं है, यही दो इनकम और एक्सपेंस है, सेल और परचेज. तो कैन आई से माय ग्रॉस प्रॉफिट इज 50,000 rupees? My gross profit is 50,000 rupees. How did I arrive at that? My income minus expense, credit minus debit. ये समझ में आ रहा है? तो मेरा इनकम 1.5 लाख का है और एक्सपेंस 1 लाख का है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 50,000. बराबर है? अब अगर मैं आपको बोलूं, देखो यहां पे मैंने क्या किया, पूरा 1 लाख का जितना गुड्स खरीदा था, लेटर से आई एम डीलिंग इन मोबाइल्स, सो 10 mobiles of 10,000 each. I purchased 10 mobiles of 10,000 each and sold them for 15,000 each. तो 10 का 10 मोबाइल मैंने बेच दिया, खरीदा और बेच दिया, तो 1 लाख का परचेज एंड 1.5 लाख का सेल. बराबर है? This is what is called as matching concept. Matching concept क्या बोलता है? Matching concept याद है किसी को? We had discussed matching concept earlier when we are discussing concepts. Matching concept. Anyone? What is a matching concept? See, matching concept का मतलब क्या होता है कि you match your incomes with your expenses at the year end. आप जब भी फाइनल अकाउंट बनाते हो तब आपको क्या करना है, अपने इनकम्स को अपने एक्सपेंस के साथ मैच करना है. मैच करने का मतलब क्या है? बड़ा ही सिंपल है कि अगर आपने 10 मोबाइल्स बेचा है तो इधर परचेज भी 10 मोबाइल का ही दिखना चाहिए.
कॉस्ट भी 10 मोबाइल का ही दिखना चाहिए. आई कैन नॉट डू लाइक दिस कि मैंने 10 मोबाइल बेचे हैं और यहाँ पे मैं कॉस्ट दिखा रहा हूँ 8 मोबाइल का या फिर 12 मोबाइल्स का. That will be wrong on my part because then it will affect violate the matching concept. Matching concept क्या बोलता है? Match your incomes with your expenses. If you are showing income of 10 mobiles, then show expenses also of 10 mobiles. If you are showing income of 20 mobiles, show your expense also of 20 mobiles. If you are showing income of 30 mobiles, show your expenses also of 30 mobiles. Match it. Why do we match it? Why do we match it? Why do we match it? The logic is very simple. Because only if you match, you will be able to compare your records properly. तो ही आपको पता चलेगा कि ईयर ऑन ईयर आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है. अगर आप मैच ही नहीं कर रहे हो, आप एक साल में 15 मोबाइल का इनकम, 10 मोबाइल का एक्सपेंस, दूसरे साल 15 मोबाइल की इनकम, 20 मोबाइल का एक्सपेंस, तीसरे साल 10 मोबाइल की इनकम, 20 मोबाइल का एक्सपेंस, आड़ा टेढ़ा कुछ भी घुसा रहे हो डेटा, तो फिर मैचिंग विल बी वेरी मैचिंग तो फॉलो होगा ही नहीं. कंपैरिजन विल बी वेरी डिफिकल्ट. आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, पता ही नहीं चलेगा बिजनेस अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, क्योंकि आप बराबर से कंपैरिजन ही नहीं रख रहे हो इनकम और एक्सपेंस के बीच में. उसी को मैचिंग बोलते हैं. आर यू गेटिंग दिस? So whenever you sell any goods in this year, you see to it that those goods are from current year. You have bought them in the current year. You have bought them, वो current year में use हुआ है, current year का expense, current year का income, एक साल का income, एक साल का expense, एक साल का purchase, एक साल का sale. Okay, उसको match करके दिखाना है when you make your final accounts. Did you get this? Now, in this example, in this very example, let us assume that I have bought 12 mobile phones. Instead of 10, I have purchased 12 mobile phones. 10 मोबाइल फोन के जगह मैंने परचेज किए हैं 12 फोन्स. 12 फोन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपए के हिसाब से 12 फोन्स की कॉस्ट हो जाएगी 1,20,000 रुपीज. राइट? 10 मोबाइल्स के जगह आई हैव परचेज सपोज 12 मोबाइल फोन्स. सो 12 फोन्स की कॉस्ट हो जाएगी 10,000 into 12, that is 1,20,000. yes or no? Now, out of those 12 mobile phones, I have sold only 10. I have sold only 10 mobile phones. 15,000 into 10, that is my selling price. Now tell me, is this a correct following of matching concept? Yes or no? Am I following the matching concept here? What do you think? क्या लगता है? हो रहा है follow कि नहीं? No, sir. नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? Because on the debit side, I have shown my expenses of 12 mobile phones. But on the credit side, I've shown my income of only 10 mobile phones. I've sold only 10. So in such a situation, what do we do? In such a situation, what do? We make an adjustment in the final accounts. Okay? We make an adjustment. Now we are starting with the adjustments. Adjustment मतलब क्या है? Unrecorded transactions. तो unrecorded transaction मतलब कैसे record करना और क्या है ये adjustment? Let's understand. इसको मैं क्या करूंगा? ये जो 10 मोबाइल का सेल है ये 10 ही रखने दूंगा. ये जो परचेज है ना 12 मोबाइल का, इसको मैं बना दूंगा 10 का. अभी 12 को मुझे 10 करना है, तो शुड आई ऐड समथिंग और सब्ट्रैक्ट समथिंग? व्हाट डू यू थिंक? 12 मोबाइल फोन का परचेज है, उसको 10 मोबाइल फोन का परचेज करना है, तो शुड आई ऐड मोर टू 12 और शुड आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 12? व्हाट डू यू थिंक? 12 मोबाइल फोन का परचेज है 1,20,000. मुझे बताना है खाली 10 मोबाइल फोन का परचेज, क्योंकि बेचा है मैंने 10 मोबाइल फोन. तो 12 को 10 करने के लिए व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? आई एम सपोज्ड टू सब्ट्रैक्ट समथिंग, राइट? हाउ मच? 20,000 फॉर द कॉस्ट ऑफ 2 मोबाइल फोन्स. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि आपका कॉस्ट जो है वो आप रिड्यूस कर रहे हो. 12 मोबाइल फोन से यू आर मेकिंग देम 10 मोबाइल फोन्स. ओके, सो आप क्या करते हो? यहाँ पर परचेज जो है, इधर से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हो. कितना माइनस कर देते हो? 20,000.
अब ये माइनस का जर्नल एंट्री क्या है? इसका जर्नल एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट. तो मैं क्या करूंगा, जितना परचेज किया है मैंने साल का, उसमें से आई विल रिमूव द क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में मेरा 2 मोबाइल फोन बच गया, दैट इज व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक. 2 मोबाइल फोन्स आर लेफ्ट आउट, दैट इज व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक. सो आई वोंट शो इट इन माय ट्रेडिंग अकाउंट, इधर नहीं दिखाऊंगा. ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाऊंगा ही नहीं. ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा परचेज होना चाहिए 1 लाख. Why 1 lakh? Because sales are of 10 mobile phones, 1,50,000. To match it, I'll show my purchase at 1 lakh. जो एक्स्ट्रा स्टॉक है उसको मैं परचेज में से माइनस कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा. ओके, उसकी जर्नल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज अकाउंट. तो आप या तो परचेज में से माइनस कर सकते हो, या फिर अगर आप फॉर्मेट देखोगे ना तो आपको कहां मिलेगा ये क्लोजिंग स्टॉक? सी द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. See the format of trading account. You will find closing stock on the credit side of trading account as 20,000. You will find closing stock on the credit side of trading account as 20,000. So the logic is same. Instead of subtracting something from the debit side, I have put something on the credit side. My gross profit won't be altered. My gross profit will still be same at 50,000 rupees. You got it? How come 50? 1,70,000 minus 120. It is still 50. 1,70,000, 150 plus 20 minus 1,20,000. My profit is still 50,000. अगर मैं purchase से minus करता, still my profit was 50,000. 120 minus 20, 1 lakh, and 1,50,000 on the credit side. So 150 minus 1 lakh gave me 50,000. So there are two ways of tackling this. Number one, either you reduce it from purchase. Why do you reduce it from purchase? Because इस साल तुमने वो बेचा ही नहीं है गुड्स, इस साल का वो एक्सपेंस है ही नहीं. मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना है अपने को. क्यों फॉलो करना है? टू कंपेयर अवर डेटा ईयर ऑन ईयर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो क्लोजिंग स्टॉक ये साल का हिस्सा है ही नहीं. यू आर नॉट गेटिंग, रिया गांधी? नॉट अंडरस्टैंडिंग. Purchase and sales का part समझा? 10 mobile phones and 15 mobile phones. Explain from scratch. I got so confused by the middle of it. I couldn't get it anything. 10 mobiles you have bought and 10 mobiles you have sold. 10 mobiles का cost था कितना? 1 lakh. 10 mobile का sale price is 1,50,000. So what am I supposed to do in my trading account? I am supposed to show the cost and the sale value of only 10 mobile phones. Because if I show 15 ka cost and 10 ka sale, it will mismatch. If it mismatches, I won't get correct results. So next year, suppose if I sell 10 mobile phones and I buy 10, so 10 or 10 and 15 and 10, that will be weird comparison, right? It won't give me a correct comparison result. I won't be able to correctly find out whether my business is doing good or bad over the years. So that's why this matching concept is very, very important. Matching क्या बोलता है कि जितना यूनिट्स आपने सेल किया है, 10 यूनिट्स आपने सेल किया है, तो सामने कॉस्ट भी 10 यूनिट्स का ही दिखाओ. Don't show it of 8 units, 9 units, 12 units, 15 units. Show it of 10 units only. So here I have sold 10 mobile phones for 15,000. So cost भी कितना दिखाना है? 10 mobile phones. Now suppose I have purchased more this year. I have purchased 12 mobile phones. तो ऑब्वियसली परचेज में 12 मोबाइल फोन्स की एंट्री की होगी आपने. परचेज टू कैश, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश, लाइक दैट इट वुड हैव बीन 1,20,000, राइट? बट आई हैव सोल्ड ओनली 10 for 1,50,000. So how can I show the cost of 12 mobile phones and sale price of only 10? What I need to do is bring the cost down to 10 mobile phones. जो परचेज है उसका कॉस्ट मुझे कितना करना पड़ेगा? अभी 1,20,000 से करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज, तो ही करेक्टली मैचिंग फॉलो होगी. तो उसको क्या बोलते हैं? जो बचा हुआ मोबाइल फोन है जो अभी तक सेल नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक. तो व्हाट विल आई डू विद दैट क्लोजिंग स्टॉक? आई विल सिंपली रिड्यूस इट फ्रॉम माय परचेज, क्योंकि वो ये साल को बिलोंग नहीं करता.
क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहां से माइनस कर दूंगा, परचेज में से 20,000 माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो ये साल को बिलोंग नहीं करता। किसको बिलोंग करता है? कब कब सेल होगा ये क्लोजिंग स्टॉक? क्या लगता है आपको? व्हेन विल आई सेल दिस क्लोजिंग स्टॉक? नेक्स्ट ईयर आई विल सेल इट, यस और नो? सो इज दिस अ कॉस्ट ऑफ करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर। सो व्हेन आई मेक नेक्स्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट ईयर का फाइनल अकाउंट, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों जगह नहीं, कोई एक जगह पे दिखाओ, या परचेज से माइनस करके या ट्रेडिंग क्रेडिट, एक जगह पे दिखा दो। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक 20,000। एंड देन व्हेन आई सेल द गुड्स इन द नेक्स्ट ईयर, तो इधर आ जाएगा बाय सेल्स, बाय सेल्स में आ जाएगा ये 20,000 का सेल वैल्यू 30,000। और परचेज किया है तो वो यहाँ पे और परचेज दिख जाएगा, नेक्स्ट ईयर का परचेज, और सेल्स में उनको भी बेचा है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो सेल में जो परचेज गुड्स है वो सेल में ऐड हो जाएंगे। एंड फिर वापस अगर नेक्स्ट ईयर कुछ बच गया तो वापस माइनस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो सेकेंड ईयर को बिलोंग नहीं करता है, वो थर्ड ईयर में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आर यू गेटिंग दिस मैचिंग साइकिल? मैचिंग साइकिल इज व्हाट? मैचिंग साइकिल इज वेरी सिंपल। जितना यूनिट्स आपने सेल किया उतना यूनिट्स का ही कॉस्ट बताइए, तो ही आप कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर आपने ज्यादा यूनिट्स परचेज किए हैं तो उसको हटा दीजिए इस साल के ट्रेडिंग अकाउंट में से, इसको रिमूव कर दीजिए। ये खर्चा ये साल को बिलोंग नहीं करता है, रिमूव दैट। तो परचेज हो गया कम, आपका हो गया 1,20,000 से 1 लाख का परचेज ये साल का। तो 20,000 जो बच गया है उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। वो क्लोजिंग स्टॉक कब यूज होगा? वो गुड्स कब सेल होंगे? इन द नेक्स्ट ईयर। So closing stock of this year becomes opening stock of next year. Are you understanding this point? So next year का डेबिट में चला जाएगा as an expense and then you sell that. अभी मैचिंग हो गया ना? फॉलो। अभी नेक्स्ट ईयर ये 2 मोबाइल फोन मैंने बेचे, तो ये परचेज ऑफ 2 मोबाइल फोन, ये सेल वैल्यू ऑफ 2 मोबाइल फोन, मतलब ओपनिंग स्टॉक एंड ये सेल्स। फिर और परचेज किया और 10 मोबाइल फोन खरीदा, तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी 1 लाख। और सपोज 10 का 10 बेच दिया, 10 का 10 बेच दिया, तो यहाँ पे 12 मोबाइल फोन का सेल वैल्यू आ जाएगा। 12 मोबाइल फोन का सेल वैल्यू वुड बी हाउ मच? 1,80,000, 15,000 into 12। आर यू गेटिंग दैट? फिर नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं बचा तो नो क्लोजिंग स्टॉक। अगर कुछ यूनिट्स बचा ही नहीं है आपके पास सेल करने के लिए तो नो क्लोजिंग स्टॉक, नो लफड़ा। क्लोजिंग स्टॉक का लफड़ा कब आएगा? जब कोई यूनिट्स बच गए। बात समझ आई? अब क्लियर है सबको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का फंडा? ट्रेडिंग अकाउंट में देखो, आपको पहले 2 आइटम जो मैंने लास्ट लेक्चर छोड़े थे फॉर्मेट डिस्कस करते वक्त, ट्रेडिंग अकाउंट के पहला ही आइटम आपको मिलेगा ओपनिंग स्टॉक। कैन यू सी दैट? व्हाट इज दैट ओपनिंग स्टॉक? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक बिकम्स दिस ईयर का फर्स्ट एक्सपेंस। डिड यू गेट इट? एंड क्लोजिंग स्टॉक भी दिखेगा आपको क्रेडिट साइड पे। वो क्रेडिट साइड को दिखाने का मतलब क्या? मैंने परचेज से माइनस किया हुआ, परचेज से माइनस करने के बदले प्रेजेंट करने के लिए मैंने क्रेडिट पे दिखाया। इसकी जर्नल एंट्री मैंने बताई आपको, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज या क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। परचेज क्या है? एक्सपेंस। क्रेडिट किया मतलब एक्सपेंस कम हो गया, क्रेडिट किया मतलब एक्सपेंस कम हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक क्या है? व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? देखो, यहां से तो हमने निकाल दिया, बचा हुआ गुड्स था, ट्रेडिंग में से मैंने रिमूव कर दिया इसको। रिमूव कैसे किया समझ में आई बात? परचेज में से लेस करने के बदले क्रेडिट में दिखाया, तो ट्रेडिंग में से ये खर्चा कम हो गया। हेलो? तो दिखेगा कहां पे? वेयर यू विल शो दिस? यहां से तो निकाल दिया, परचेज में से तो रिमूव कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को। वेयर यू शुड शो इट? किधर तो दिखाना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स में। वेयर शुड आई शो इट? ट्रेडिंग में से तो रिमूव कर दिया, वहां पे तो इसकी जगह है नहीं। आई हैव रिमूव्ड दिस आइटम फ्रॉम ट्रेडिंग, तो वेयर शुड आई पुट दिस नाउ? देयर मस्ट बी सम अदर प्लेस। थिंक अबाउट इट। You have done it already. Where will this stock appear now?
ये क्लोजिंग स्टॉक जो है इस साल मैंने परचेज में से तो रिमूव कर दिया है, ये परचेज में से माइनस करने के जगह मैंने क्रेडिट साइड पे दिखाया है 20,000, तो यहां से तो निकल गया है, ये ट्रेडिंग में से निकल गया है, ये अभी गुड्स की वैल्यू हो गई है 1 लाख। तो ये जो 20,000 का जो बचा हुआ स्टॉक है ये कहाँ दिखना चाहिए? Think. You have done it many times. बत्ती चमक रहा है कुछ? This बचा हुआ stock will be shown in your balance sheet as an asset. This बचा हुआ stock will be shown in the balance sheet as an asset. लिखते हो ना stock, unsold goods, current asset, जो next year sell करोगे आप। बात समझ में आ रही है? अनसोल्ड स्टॉक जो बचा हुआ स्टॉक रहता है, करंट एसेट। बैलेंस शीट देखा है, बैलेंस शीट में 3-4 टाइप के एसेट होते हैं, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एक्सपेंस को कम कर देते हैं, यहां से एक्सपेंस को रिड्यूस कर देते हैं और उस पार्ट को दिखा देते हैं लाइक एन एसेट, लाइक एन एसेट। इसी को कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। अभी प्रीपेड का मतलब देखो, प्रीपेड का मतलब क्या, आपको परचेज करना था 1 लाख ये साल, क्योंकि आपने सेल किया था 1 लाख का यूनिट, 10 मोबाइल फोन, आपने ज्यादा परचेज कर लिया, 12 मोबाइल फोन। सो 2 मोबाइल फोन का पेमेंट आपने एडवांस में कर दिया था, प्रीपेड एक्सपेंस था वो, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, उसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्या वो 2 मोबाइल फोन का कॉस्ट ये साल का एक्सपेंस है? दैट 2 एक्स्ट्रा मोबाइल फोन का कॉस्ट ये साल का एक्सपेंस है? नहीं, ये साल का एक्सपेंस नहीं है। तो हमने क्या किया, ट्रेडिंग में से निकाल दिया उसको, ट्रेडिंग में से निकाल दिया और परचेज बना दी 1 लाख, परचेज बना दी 1 लाख। यहां तक क्लियर? और अब ये क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाएंगे? इन द फॉर्म ऑफ एसेट। वी विल शो इट इन द फॉर्म ऑफ एसेट। व्हाई एन एसेट? बिकॉज ये आपको नेक्स्ट ईयर बेनिफिट देगा, ये आपको नेक्स्ट ईयर बेनिफिट देगा। कंसिडर दिस लाइक योर फर्नीचर, यू हैव डन डेप्रिसिएशन, कंसिडर दिस लाइक योर फर्नीचर। आपके बुक्स में फर्नीचर था 10,000 का, जिसकी लाइफ है 2 इयर्स। 10,000 का फर्नीचर बचा हुआ है जिसकी लाइफ है 2 साल। तो आप क्या करोगे? 1 ईयर 5,000 डेप्रिसिएशन, अनदर 5,000 डेप्रिसिएशन, यस और नो? तो आप क्या करते हो? डेप्रिसिएशन मतलब डेप्री टू फर्नीचर, फर्नीचर कम हो रहा है और एक्सपेंस जा रहा है पीएनएल में। फर्नीचर 5,000 से कम होएगा ना, फर्स्ट ईयर 10 माइनस 5 5 हो जाएगा और पीएनएल में चला जाता है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और पीएनएल में चला जाता है डेप्रिसिएशन। आर यू गेटिंग दैट? सेम इज द केस ऑफ स्टॉक। स्टॉक क्या है? फर्नीचर जैसा एक एसेट है। फर्क क्या है? फर्नीचर 2 साल के ऊपर राइट ऑफ हुआ क्योंकि उसकी लाइफ 2 साल थी। स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ही चला गया ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि उसकी लाइफ 1 साल थी। तो स्टॉक इस साल के एंड में कहां बैठा होगा? करंट ईयर के एंड में बैठा होगा बैलेंस शीट एसेट में, और वेरी नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसे डेप्रिसिएशन पीएनएल में गया एज एन एक्सपेंस, वैसे स्टॉक वेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट एज एन एक्सपेंस। लॉजिक इज वन एंड द सेम। खाली डेप्रिसिएशन को पीएनएल में क्यों डाला? बिकॉज इट वाज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। स्टॉक को ट्रेडिंग में क्यों डाला? बिकॉज इट वाज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। फंडा इज सेम। फर्नीचर और स्टॉक, फर्क क्या है? फर्नीचर की लाइफ 2 साल थी और स्टॉक की लाइफ 1 ही साल थी। इस साल के एंड में बच गया, नेक्स्ट ईयर के एंड में यूज हो गया। इस साल के एंड में बच गया, नेक्स्ट ईयर के एंड में यूज हो गया। बात समझ आई? अगर अगर समझो इस साल मैंने 12 मोबाइल के जगह 22 मोबाइल फोन्स खरीदे होते, 12 के जगह 22 खरीदे होते और बेचे खाली 10, तो कितना एक्सपेंस दिखाना चाहिए मुझे ये साल मोबाइल फोन में परचेज में? 10 ही दिखाना चाहिए क्योंकि 10 सेल हुआ है तो 10 ही दिखाना चाहिए। तो कितना एक्स्ट्रा मोबाइल फोन है मेरे पास? 12, राइट? 12 मोबाइल फोन्स हैं, तो 12 मोबाइल फोन्स क्या बन जाएंगे मेरे? 12 मोबाइल फोन्स इंटू 10,000 ईच
1,20,000 will be called as my closing stock. Correct? What will I do with my closing stock? I will show it in my trading account, credit side, buy closing stock 1,20,000, and simultaneously I will show it in my balance sheet asset as closing stock. कितना? 1,20,000. बराबर है? Then, sir, you told that we will remove it from trading account. I removed it from trading. This is removal only. How did I remove it? Because my purchase here was showing cost of 22 mobiles. 22 into 10, that came to 2,20,000. But I had to make it 1 lakh. How would I make 2,20,000 go 1 lakh? I will subtract it, right? I'll subtract 1,20,000. तो क्रेडिट में लिखने का मतलब वो तुमने इनडायरेक्टली सब्ट्रैक्ट ही किया. तो उधर वो एंट्री देख के कंफ्यूज मत होना कि वो ट्रेडिंग में दिख रहा है. एक्चुअली वो ट्रेडिंग में से जा रहा है सब्ट्रैक्ट होके. प्रेजेंटेशन के लिए क्रेडिट में दिखाया है. वो क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर पड़ा हुआ है ना, परचेज के अंदर, वहां से निकल रहा है, रिमूव हो रहा है. So what if we purchase goods and then some of them we purchase 50,000 goods of 50,000 Yes. and we are able to sell only 40,000 ka goods हाँ. and so 10,000 will be closing stock. Closing stock. But what if those goods go obsolete for next year? Exactly, absolutely right. What if those goods go absolute? I'll come to that. Obsolete. I'll come to the valuation part. Very good question. I'll come to that valuation part. Just after this point. First, to understand the mechanism of closing stock. Then we'll come to the valuation part. तो 1,20,000 मैंने यहाँ से रिमूव करना है. ये बात समझ में आ रही है आपको? तो मेरा कॉस्ट हो जाएगा 1 लाख और यहाँ पे ये स्टॉक दिख जाएगा एसेट में 1 लाख. ये कब यूज होगा? मेरा नेक्स्ट ईयर में यूज होगा. नेक्स्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट में यही चीज क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 1,20,000. ओके. नाउ इमेजिन in this year also I sold only 10 mobile phones. Last year also 10 mobile phones. This year also 10 mobile phones. इधर भी 1,50,000, इधर भी 1,50,000. 15,000 में बेचा 10 मोबाइल फोन. Still I am left with how many mobile phones? Out of these 12, how many I have sold? Only 10. So still I am left with 2. तो नेक्स्ट ईयर में मैं क्या करेगा? हाउ मच इज माई क्लोजिंग स्टॉक नाउ? 12 में से आई एम एबल टू सेल ओनली 10. तो हाउ मच इज स्टिल लेफ्ट? 2,000, राइट? 2 मोबाइल फोन्स, राइट? 20,000. 2 more मोबाइल फोन्स आर लेफ्ट. उसको भी मैं क्या करेगा? इधर से रिमूव कर देगा. बाय क्लोजिंग स्टॉक. बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 20,000. वो जाएगा इस साल का बैलेंस शीट एसेट में. ये लायबिलिटी, ये एसेट. इधर क्लोजिंग स्टॉक दिख जाएगा कितना? 20,000. अब ये 20,000 इसका नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक 20,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग द साइकिल ऑफ एक्सपेंस? जब तक वो एक्सपेंस यूज नहीं हो जाता, जब तक वो मोबाइल फोन सेल नहीं हो जाता, जिस साल में वो सेल होगा उस साल में वो एक्सपेंस नहीं. जब तक नहीं हो रहा तब तक एसेट 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 एसेट. इट विल बी अ पार्ट ऑफ एसेट. क्योंकि बेचोगे तो पैसा मिलेगा. बेचोगे तो पैसा मिलेगा. तो एसेट और एक्सपेंस का लॉजिक क्या है? एसेट और एक्सपेंस का लॉजिक बड़ा ही सिंपल है. जो चीज यूज हो गई, जो चीज सेल हो गई, वो एक्सपेंस. जो चीज बची हुई है फ्यूचर में काम आएगी, वो एसेट. आपने एयर कंडीशन लाया 50,000 का, 5 साल चलेगा. कितना साल चलेगा? 5 years चलेगा. कैन यू शो 5 year का 1 year में एक्सपेंस? नो. 5 साल चलेगा तो हर साल 10 10 10 10 10,000 रिड्यूस करोगे और 10 10 10 10 10 यू विल शो इट एज डेप्रिसिएशन. दैट इज योर एक्सपेंस. तो एक साल में 10,000 यूज किया, वो एक्सपेंस. 40,000 बच गया, वो एसेट. नेक्स्ट ईयर 10 यूज किया, वो एक्सपेंस. 30,000 बच गया, वो एसेट. वापस 10 यूज किया, वो एक्सपेंस. 20 बच गया, वो एसेट. एसेट और एक्सपेंस का रिलेशन बैठ रहा है दिमाग में. गुड्स आपने 10 लाख रुपीस के गुड्स खरीदे, 10 लाख के गुड्स खरीदे, जिसमें से 8 लाख के ही सेल हुए. कितने के सेल हुए? 8 लाख. तो बच गए कितने? 2 लाख. नेक्स्ट ईयर काम आएंगे.
तो अभी एसेट में दिखाओ, नेक्स्ट ईयर सेल हुए, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस में बना दो 2 लाख एज योर ओपनिंग स्टॉक। अच्छा नेक्स्ट ईयर भी पूरे सेल नहीं हुए, नेक्स्ट ईयर भी 2 लाख में से समझो 50,000 के सेल हुए हैं, तो 1,50,000 को एसेट बता दो क्लोजिंग स्टॉक, वो बन जाएगा उसका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद 1,50,000 में से और 1 लाख सेल हुए तो बता दो एक्सपेंस, बच गए 50,000, दैट विल बी एसेट एज योर क्लोजिंग स्टॉक। उसके नेक्स्ट ईयर में सेल हुआ, दैट विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक। आर यू गेटिंग दिस? अब ये सब झंझट करने की बदली मैं अगर ऐसा कर देता, मैं अगर परचेज, इधर मैंने सेल कितना मोबाइल फोन किया है, 10 मोबाइल फोन किया है, राइट? आई हैव सोल्ड 10 मोबाइल फोन। अगर मेरा परचेज 10 मोबाइल फोन का ही होता, परचेज भी 10 का है, सेल का भी 10 है, तो विल देयर बी एनी क्लोजिंग स्टॉक? विल देयर बी एनी ओपनिंग स्टॉक? नो चांस, नो लफड़ा। ये लफड़ा क्यों आया क्लोजिंग स्टॉक का? यू अंडरस्टैंड? बिकॉज आई बॉट मोर बट आई सोल्ड लेस. There were some stock lying unsold, some goods lying unsold, which I'll be using next year. So for exact comparison, this lafda of closing stock here, this lafda of closing stock here. Is this part clear? This is what is called as an adjustment. Now why this adjustment entry is coming at the time of final account? That is the answer for Ria's question. हम लोग क्या करते हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक पहले क्यों नहीं कर देते? क्योंकि 31 दिसंबर से 3-4 दिन पहले भी पता चल जाता अपने को, तो हम लोग परचेज में से कम करके डायरेक्टली एसेट में एंट्री, ये एंट्री पहले ही कर सकते थे हम लोग 1-2 दिन पहले। कौन सी एंट्री? ये एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। परचेज में से कम कर देते, एंट्री कर देते क्लोजिंग स्टॉक में टू परचेज, परचेज में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और फिर बैलेंस लेते, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते। तो टेंशन ही नहीं होता ये दो जगह एडजस्ट करने का, डायरेक्टली आ जाता रिकॉर्ड होके। ये हम चीज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग रुकते हैं टिल 31 मार्च, अपना ईयर एंड है ना, ईयर एंड के दिन तक हम लोग वेट करते हैं। अभी ध्यान देना, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल पे आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक के एग्जाम्पल पे। पहले मैकेनिज्म समझ में आया सबको क्लोजिंग स्टॉक का? अभी मैंने जो समझाया, डिड यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, ट्रीटमेंट क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक का? ट्रेडिंग क्रेडिट क्यों? रिमूव इट फ्रॉम योर परचेज। एंड एसेट्स क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर काम आएगा। ये बात समझ में आई? अभी क्यों 31 मार्च तक वेट किया, लास्ट डेट तक? लास्ट डेट तक इसलिए वेट किया क्योंकि अभी अभी रिया गांधी ने कुछ पूछा। क्या पूछा रिया गांधी ने? व्हाट इफ द स्टॉक बिकम्स ऑब्सोलीट? व्हाट इफ द स्टॉक बिकम्स ऑब्सोलीट और नहीं बेच पाए तो इसीलिए हम लोग डैम श्योर हो जाते हैं, हम लोग लास्ट डे तक रुकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये स्टॉक नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में बिक जाएगा, फर्स्ट या सेकेंड मंथ में बिक जाएगा ओपनिंग स्टॉक पर। तो हम लोग लास्ट डे तक वेट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि भैया मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है इसका, मार्केट में क्या भाव चल रहा है इस स्टॉक का। अभी मेरा मोबाइल फोन कितने का था हितांशी? माय मोबाइल फोन आई हैड परचेज फॉर हाउ मच? 10,000 रुपीज। ओके, स्टे विथ मी नाउ। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ माय क्लोजिंग स्टॉक? मैंने 12 खरीदे थे, 10 बेचे थे, तो 2 मोबाइल का क्लोजिंग स्टॉक था ये 20,000। ऑल ऑफ यू आर एबल टू विजुअलाइज दैट? ये 2 मोबाइल का कॉस्ट इज हाउ मच? 10,000 ईच। मैंने 31 मार्च को ईयर एंडिंग के दिन मार्केट प्राइस देखी, देखा बाजार में क्या भाव चल रहा है, नेक्स्ट ईयर बेचूंगा तो कितना मिलेगा, तो मुझे पता चला कि नेक्स्ट ईयर इसका प्राइस हो गया है 2,000 रुपीज। मार्केट में प्राइस हो गया 2,000, ऑब्सोलीट हो गया, नया वर्जन आ गया फोन का, ये वर्जन ऑब्सोलीट हो गया, ये वर्जन क्या हो गया? ऑब्सोलीट हो गया, ये मोबाइल फोन काम का नहीं है, 2000 में मुझे सेल करना पड़ेगा। नाउ वी फॉलो वन मोर कंसेप्ट इन अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म। व्हाट डज कंजर्वेटिज्म स्टेट? इफ यू रिमेंबर, कंजर्वेटिज्म बोलता है कि प्रोवाइड फॉर एक्सपेंसेस इन एडवांस बट नॉट प्रोवाइड फॉर इनकम्स। Don't provide for incomes in advance, provide for expenses in advance but don't provide for incomes। मतलब अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो अभी से दिखा दो रिकॉर्ड करके बुक्स में, बट फ्यूचर में अगर कोई गेन होने वाली है तो उसको मत दिखाओ। फ्यूचर का एक्सपेंस अभी दिखा दो लेकिन फ्यूचर का गेन मत दिखाओ।
अब यहां पर कैन आई से फ्यूचर में जब ये स्टॉक बेचूंगा तो कितने में बिकेगा? 2000 में। और अभी मेरा वैल्यू कितना है? 20। तो आई विल हैव अ लॉस ऑफ हाउ मच? 18 का लॉस होगा ही फ्यूचर में बेचूंगा डेफिनेटली। तो मैं वहां तक रुकूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है ना 20, आई वोंट Loss will be 16, right? 2K is per mobile phone का price. oh sorry 10 into 2 20, 2 into 2 4, yeah 16,000। 20,000 minus 4,000, 16,000 का लॉस होने वाला है फ्यूचर में, राइट? तो मैं क्या करूंगा, 16 का लॉस होने वाला है क्योंकि वैल्यू ऑफ फोन्स इज नाउ 4,000, दो मोबाइल फोन 2,000 ईच, और मेरा में बुक्स में दिख रहा था अभी 20,000। तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्यूचर के लिए वेट नहीं करूंगा, मैं इस मोबाइल फोन को जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसको इधर ही चेंज करके बता दूंगा 4,000, इधर ही चेंज करके बता दूंगा 4,000। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहां से मैं माइनस कर रहा हूं, मैं क्लोजिंग स्टॉक, आप माइनस करने के जगह क्रेडिट पे दिखाओ, बात एक ही है। तो कितना माइनस करूंगा? 20 नहीं माइनस करूंगा, ओनली 4,000 आई विल सब्ट्रैक्ट। तो 16,000 रहने दूंगा, 16,000 रहने दूंगा एज दिस ईयर का कॉस्ट। Why? Though I have not sold this mobile phone, still I will show 16,000 as this year ka cost because of that conservatism. Because of that conservatism. Conservatism क्या बोलता है? Show your losses in advance, but never show your gains in advance. तो मैं क्या सोचूंगा, ये साल अभी मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा? 120 minus 4, 120 minus 4 is how much? 1,60,000। पहले था 1 लाख, अभी था 1,16,000। तो अभी प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 16,000 से कम। माय प्रॉफिट विल बिकम 34,000, माय ग्रॉस प्रॉफिट विल बिकम 34,000। तो मैंने यही साल का प्रॉफिट कम कर दिया, क्योंकि अब मेरे को मालूम है ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये नेक्स्ट ईयर का क्या बनने वाला है? ये नेक्स्ट ईयर का क्या बनने वाला है? ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग क्रेडिट के जगह अपने माइनस करने के वजह क्रेडिट में दिखाया, और ये ओपनिंग स्टॉक कितना दिखेगा अभी? 4,000। और सेल कितने में होगा? 4,000। ये आएगा भी 4 और जाएगा भी 4, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। फ्यूचर में जो लॉस होने वाला था, मैंने क्या किया? एडवांस में दिखा दिया। मैंने क्या किया? एडवांस में दिखा दिया। कैसे दिखाया? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करके, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करके। तो सपोज आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आपका शोरूम है टाटा मोटर्स, आप कार मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है? आपका पेट्रोल का कार था, पेट्रोल का कार था, 31 मार्च को आपके पास समझो समझो टाटा, टाटा कौन सा चल रहा था? टाटा, टाटा इंडिगो, टाटा इंडिगो है, टाटा इंडिगो का मॉडल था आपके पास। यू हैड 10 कार्स वर्थ 10 lakhs, दैट्स वर्थ 1 करोड़। 10 कार्स वर्थ 10 लाख, 1 करोड़, इतना बच गया था कार आपके पास 31 मार्च को। फिर गवर्नमेंट ने लाया, बजट में बोल दिया कि भैया इलेक्ट्रिक चलेगा, नेक्स्ट ईयर से इलेक्ट्रिक चलेगा, सबको इलेक्ट्रिक करना, इलेक्ट्रिक करना कंपलसरी कर दिया। तो आप क्या करोगे? अभी पेट्रोल तो कोई खरीदने वाला नहीं है गाड़ी, तो आपको 10 लाख का गाड़ी थोड़ा कम प्राइस पे ही बेचना पड़ेगा, झक मार के, रास्ता ही नहीं है आपके पास। बेच सकोगे आप 10 लाख में? नहीं बेच सकोगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया? सबको इलेक्ट्रिक कंपलसरी बना दिया है। तो आपका वैल्यू ऑफ कार 10 लाख नहीं रहेगा अभी, आप समझो डिस्काउंट डिस्काउंट देके 6 लाख में बेचने वाले वो 10 गाड़ियां। तो आपका जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो कितना हो गया? अभी 1 करोड़ से हो गया है कितना? 60 लाख रुपीज। 1 करोड़ से हो गया है 60 लाख रुपीज। समझ में आया कैसे? क्योंकि फ्यूचर में बेचोगे तो 60 लाख में ही बिकेगा, 6 लाख में ही गाड़ी बिकेगी, 10 यूनिट्स है, 60 लाख में ही बिकेंगे, तो आपको लॉस होने ही वाला है 40 लाख का। तो फ्यूचर का लॉस है ना, तो हम क्या फॉलो करते हैं अकाउंटेंसी में? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? फ्यूचर के लिए वेट मत करो, अभी से वो लॉस दिखा। तो अभी ही आपके बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाओगे आप? 1 करोड़ दिखाओगे या 60 लाख दिखाओगे? यू विल सिंपली शो इट एट 60 lakhs. You will make it 60 lakhs, not 1 crore. Why 1 करोड़ के जगह 60 लाख? क्योंकि फ्यूचर में सेल करोगे, कितने में सेल होने वाला है? 60 लाख। 1 करोड़ तो मिलेगा नहीं,
फ्यूचर में 60 में ही बिकने वाला है, तो अभी से 60 कर दो। अभी से 60 करने का मतलब क्या, परचेज में से आपने 1 करोड़ माइनस नहीं किया, आपने 60 लाख माइनस, 40 लाख रहने दिया, 40 लाख रहने दिया, कॉस्ट रहने दिया, इसलिए आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। दिस ईयर का प्रॉफिट विल गेट रिड्यूस्ड। यहाँ पे दिख रहा है हमारे केस में, पहले ग्रॉस प्रॉफिट था 60,000, अब ग्रॉस प्रॉफिट था 50,000, अब ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 34,000। So this is what is the valuation principle of closing stock. This is learned by students in CA Foundation and CA Inter. This is the valuation principle of closing stock as per accounting standard 2. ICAI standards issue करता है, उसमें accounting 32 33 standards issue किए गए हैं कंपनी के लिए, अलग अलग वैल्यूएशन चीजों के अलग अलग स्टैंडर्ड है, उसमें से स्टॉक वैल्यूएशन का स्टैंडर्ड है AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। वो बोलता है, और जनरली कंजर्वेटिज्म में भी हम लोग ये करते हैं, स्टॉक को कैसे वैल्यू करने का, कॉस्ट या मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस, कॉस्ट या मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस। लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपकी टाटा इंडिको 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, गवर्नमेंट ने कोई इलेक्ट्रिक का नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि सबको इलेक्ट्रिक करना पड़ेगा, तो 10 लाख का गाड़ी आप 15 लाख में बेचने वाले हो फ्यूचर में, ऑब्वियसली प्रॉफिट लगा के, तो 10 लाख का गाड़ी आपका 15 लाख में सेल होने वाला है फ्यूचर में। अब आप क्या करोगे, विल यू शो योर स्टॉक एट 1 करोड़ या 1.5 करोड़, क्योंकि आप 15 करोड़ में 15 बेचने वाले हो, 15 लाख में उसको, तो विल यू शो योर क्लोजिंग स्टॉक स्टिल एट 1 करोड़ या फिर 1.5 करोड़, क्योंकि आप फ्यूचर में हायर प्राइस पे बेचने वाले, 1 crore. स्टिल यू विल शो इट एट 1 करोड़। व्हाई? इनकम्स कैन नॉट बी शोन इन एडवांस। फ्यूचर का प्रॉफिट अभी नहीं दिखाने का, फ्यूचर का प्रॉफिट नहीं दिखा, क्योंकि आप अगर इधर 1.5 करोड़ दिखा देते हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आप 1.5 करोड़ माइनस करोगे परचेज में से, 1.5 करोड़ करोगे तो परचेज एक्सपेंस और कम हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बोलने का मतलब लॉस हो रहा है तो दिखाओ, बट प्रॉफिट हो रहा है तो कभी एडवांस में दिखाने का नहीं। ऐसा क्यों? ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आपने एडवांस में लॉस दिखाया शेयर होल्डर को और बाद में प्रॉफिट दिखाया तो शेयर होल्डर बुरा नहीं मानते, लेकिन अगर आपने अभी प्रॉफिट दिखा दिया और बाद में लॉस किया तो शेयर होल्डर जूता मारेंगे कि पहले अच्छा पिक्चर दिखाया, अभी उल्लू बना रहे हैं हम लोग। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी। you commit less and you do more, people will be happy, but you commit more like people do in relationships। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, फिर शादी होती तो फिर कुछ नहीं, तो जूता मिलता है, कहाँ गए चांद तारे, अभी खाली रोटियां बना के खिलानी पड़ती है। तो you commit less and you do more, people will be happy, but you commit more and you do less, आपको मिलेंगे जूते। ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी, दोनों कंडीशन में सेम चीज हो रही है, लेकिन डिफरेंस होता है पहले और बाद में करने में। ओके, तो यहाँ पर कंपनीज भी वही फॉलो करती है, कंजर्वेटिज्म। अगर उनका स्टॉक वैल्यू कम हो जाता है तो पहले कम वैल्यू दिखा देती है। बात समझ में आ रही है? तो लॉस एडवांस में दिखा देती है। लॉस कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? लॉस, हेलो हेलो हेलो, आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक कम कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक कम कर दिया तो आपका परचेज एक्सपेंस ज्यादा हो गया, परचेज एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम दिखेगा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम दिखेगा। और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बता दिया तो आपका परचेज एक्सपेंस कम हो जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक, इन शॉर्ट थंब रूल फॉर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है तो प्रॉफिट भी कम है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा। डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है तो प्रॉफिट भी कम रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखा दी तो प्रॉफिट भी इन्फ्लेट होकर दिख जाएगा। तो इसलिए हम लोग कम दिखाने में मानते हैं, कंजर्वेटिज्म, पहले कम दिखाओ फिर ज्यादा होने दो चलेगा, पहले ज्यादा फिर कम नहीं होना चाहिए। तो अनदर थंब रूल, क्लोजिंग स्टॉक को कौन से अमाउंट पे वैल्यू करना है? क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is less, cost और मार्केट प्राइस whichever is less, cost और मार्केट प्राइस whichever is less। अब समझ आया ऑब्सोल्यूट स्टॉक का फंडा? जो स्टॉक्स ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे उसको कम वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करना है। रिया को समझ में आ रहा है?
मुझे एक बात बताओ, आई थ्रो यू वन मोर एग्जांपल. आप डील कर रहे हो समझो आईफोन्स में. आईफोन 10 आ गया आपके पास. आईफोन 10 आपने खरीदा था 50,000 में. आप डीलर हो, 50,000 में आपने आईफोन खरीदा था. ओके, आपका स्टॉक में बच गया है 5 आईफोन. सो 2,50,000 के आईफोन्स बच गए आपके पास. अब वो 5 आईफोन की वैल्यू मार्केट में हो गई है 40,000. क्यों? क्योंकि आईफोन 11 12 आ गए. तो अभी कोई 50 में नहीं खरीदेगा, अभी वो खरीदेंगे 40 में. तो मुझे बात बताओ, will you show your closing stock at 2,50,000 or will you show your closing stock at 2 lakh? What do you think? 2 lakhs. Why 2 lakhs? क्योंकि फ्यूचर में कितने में सेल होने वाला है? 2 lakhs. 40,000 into 5. Yes or no? Show your closing stock at 2 lakhs. 2 लाख की परचेज में से सब्ट्रैक्ट करो, परचेज का कॉस्ट ज्यादा, ग्रॉस प्रॉफिट कम. ये साल लॉस रिकॉर्ड हो गया. अभी नेक्स्ट ईयर वो फोन्स 2 लाख में बिकेंगे, तो नेक्स्ट ईयर नो प्रॉफिट नो लॉस. जो लॉस होने वाला था नेक्स्ट ईयर, वो लॉस आपने एडवांस में दिखा दिया. बात समझ आई? बट अगर मैं आपको यही एग्जांपल में बोलूं कि यही 50,000 के आईफोन्स हैं, 50,000 के जो आईफोन्स हैं, फ्यूचर में 60,000 में बिकने वाले हैं. 50 के आईफोन्स कितने में बिकेंगे? 60,000 या 70,000 में या 80,000 में. 50 के ऊपर ही बिकेंगे. तो फिर आप क्लोजिंग स्टॉक में कितना दिखाओगे? विल यू शो 2,50,000 और द हायर वैल्यूज? हाँ, तो लोअर वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2,50,000 into 5. तो यू विल शो इट स्टिल एट कॉस्ट प्राइस. इसीलिए वो प्रिंसिपल मैंने दिया ना अभी, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस. हायर नहीं, लोअर. हायर पे दिखाया तो जूते पड़ेंगे, याद रखना शेयर होल्डर से फ्यूचर. अभी ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हो, बाद में कम दिखा रहे. शादी के बाद भी जूते पड़ेंगे और अभी भी जूते पड़ेंगे. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को कम प्राइस पे दिखाओ. कम प्राइस पे दिखाओगे मतलब अभी आप लॉस दिखा रहे हो, फ्यूचर में होने दो प्रॉफिट. अच्छी बात. फंडा समझा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का? अभी ले लो प्रॉब्लम. आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ. शुभारंभ करते हैं प्रॉब्लम. टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम. फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ कल्पना ट्रेडर्स. आपको मिला वो सम? Following is the trial balance of Kalpana Traders as on 31st March 2009. You are required to make trading and P&L account for the year ended 31st March 2009 and balance sheet as on that date. Okay. पहली चीज क्या करनी है, आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. यू हैव बीन गिवन द ट्रायल बैलेंस. आपको बताया था क्वेश्चन विल बी ऑफ ट्रायल बैलेंस. रिकॉर्डेड आइटम जो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिले हैं लेजर अकाउंट से, अभी उसकी मदद से आप बना रहे हो फाइनल अकाउंट्स. ओके, तो टेक अ पेंसिल and mark down every item of trial balance will go either in trading account or in profit and loss account or in balance sheet. Okay, तो अभी आपको फॉर्मेट के हिसाब से डिसाइड करना है. सबसे पहला आइटम आपको दिख रहा है स्टॉक ऑन 1408. स्टॉक ऑन 1408. व्हाट इज आवर ईयर एंडिंग? 31st March 09, right? Stock is on 1408. So which stock is that? Think about it. Stock of previous year. Closing stock of previous year. So opening stock of this year. Where you will write opening stock of this year? Just now we did discussed over here. Where will the Which side? trading account debit side. क्यों समझा? लास्ट ईयर का बचा हुआ है एसेट, ये साल काम आएगा एक्सपेंस. समझा? ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का बचा हुआ गुड्स, ये साल बेचोगे तो ये साल का फर्स्ट एक्सपेंस. सो उधर पेंसिल से लिखना है टीडी. टी फॉर टाटा, डी फॉर डेनमार्क, टीडी, ट्रेडिंग डेबिट. उसके नीचे मिलेगा परचेजेस. वेयर यू विल राइट परचेजेस? ट्रेडिंग डेबिट, बिगेस्ट एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, टीडी. रिटर्न इनवर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न इनवर्ड? सेल्स रिटर्न कहाँ जाता था? फॉर्मेट याद करो. Where we used to write sales returns? Debit side. No. Credit. Credit.
सेल्स में से माइनस सेल्स रिटर्न्स, याद आ रहा है? ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग डेबिट में परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग क्रेडिट में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, तो उधर लिखना है टीसी माइनस ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस टीसी माइनस ट्रेडिंग क्रेडिट में से माइनस रिटर्न इनवर्ड टीसी माइनस। वेजेस कहाँ जाएगा? वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, याद है? परचेज और प्रोडक्शन वाले एक्सपेंस ट्रेडिंग डेबिट, टीडी डायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरीज कहाँ जाएगा? P&L. P&L डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा? कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स को लाने का खर्चा, गुड्स को लेके आने का खर्चा कहाँ दिखता था? परचेज और प्रोडक्शन का एक्सपेंस कहाँ दिखता था? टीडी ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग डेबिट टीडी। कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स को बेचने का खर्चा, गुड्स को बेचने का खर्चा कहाँ दिखता था? पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट, पीएलडी पीएनएल डेबिट। पावर एंड फ्यूल कहाँ दिखेगा? ट्रेडिंग डेबिट, ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस। पावर बताया था ना, प्रोडक्शन का, फैक्ट्री का सब एक्सपेंस, टीडी ट्रेडिंग डेबिट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिखेगा? सेलिंग का खर्चा, पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट, पीएलडी। परचेज प्रोडक्शन वाले एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग डेबिट, ओके, बाकी सब पीएनएल डेबिट। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ दिखेगा? ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल डेबिट, पीएलडी पीएलडी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ दिखेगा? पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कमीशन कहाँ दिखेगा? वाई क्रेडिट? How will you conclude it is income? Commission. Commission can be both paid or received. Check the side of trial balance. You have already done trial balance. याद है ट्रायल बैलेंस आप लोग करते थे, खुद बनाते थे? All assets have got debit balance, all expense have got debit balance, all incomes have got credit balance, all liabilities have got credit balance. याद आ रहा है कुछ? तो ये जो डेबिट बैलेंसेस हैं, ये डेबिट बैलेंस में क्या हो सकता है? इट कैन बी एन एक्सपेंस और एन एसेट। और क्रेडिट बैलेंस में क्या हो सकता है? इट कैन बी इनकम और अ लायबिलिटी। बनाया है ना ट्रायल बैलेंस आपने खुद ने, डीसी डीसी डीसी, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, याद आ रहा है? तो कमीशन कौन सा कमीशन है? ये कमीशन पेड होगा कि कमीशन रिसीव्ड होगा? पेड। डेबिट में दिख रहा है ना, तो पेड है। तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, कहाँ जाएगा? पीएनएल डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल डेबिट। फर्नीचर कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। व्हाट इज फर्नीचर? एसेट। तो किधर जाता है? बैलेंस शीट, एसेट। तो ए लिखो, ए स्टैंड्स फॉर एसेट, ए स्टैंड्स फॉर एसेट। मतलब ये क्या है? फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर फर्नीचर था 8500 का। बैलेंस शीट एसेट, इसको ट्रेडिंग पीएनएल में मत डाल लेना। हेलो, व्हाट डू यू राइट इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल? Expenses and incomes, 1 year का expense and 1 year की income, okay? Assets and liability go in balance sheet. मशीनरी कहाँ जाएगी? Asset, A लिख दो। Cash in hand, asset, current asset, A लिख दो। Drawings, फॉर्मेट में याद करो, ड्राइंग्स भी था। क्या करते हो ड्राइंग्स? क्या होता है? डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल का नेगेटिव कंपोनेंट है वो। कैपिटल मतलब लाया, ड्राइंग्स मतलब लेके गया, तो लेस फ्रॉम कैपिटल। तो उधर लिखो कैपिटल, सीएपी माइनस, सीएपी माइनस, सीएपी माइनस। कैपिटल कहाँ दिखता है? कैपिटल लायबिलिटी, बिगेस्ट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, फर्स्ट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज कैपिटल। तो कैपिटल में से माइनस, याद है ना कल फॉर्मेट बनाया था बैलेंस शीट का? कैपिटल, ड्रॉइंग्स है तो उधर से माइनस। डेटर्स, पढ़ा? डेटर्स एसेट्स, करंट एसेट बताया ना, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, एसेट। ए लिख दो। बिल्स रिसीवेबल, एसेट। All of you comfortable with the debit side of trial balance? All markings? Any doubts? Tell me. Anyone?
ईशा, पलक, Heath, Hitanshi, all sorted. Next one, credit side of trial balance. Check the credit side. Starting with capital. Where you will write capital? Liability. Liability. First liability लिखना है. बाकी मार्शलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है. खाली पहला कैपिटल लाइबिलिटी. Discount received. Discount received is an income, right? Income दो ही जगह पे जाता है. P&L credit. Either trading credit या P&L credit. अब दिमाग लगाओ कहाँ जाएगा? P&L credit. P&L credit. Why not trading credit? Because in trading only sales is the income. Only sales income comes in trading credit side. Only sales income comes in trading credit side. Yes. उसको छोड़ के सब income P&L में. Then sales कहाँ जाएगा sales? Trading. Trading credit TC. Write down TC. Return outward मतलब कौन सा return? Purchase returns. Purchase return क्या हो? Actually credit balance है, but क्या करते हो presentation के लिए? How will you show purchase return? Subtract from purchases. Subtract from purchase. Okay, sales return, purchase return opposite है. Sales return less from sale, purchase return less from purchase. Instead of showing on credit debit side, we subtract and show just for presentation. Okay. Actually वो credit और debit के items है, but opposite side पे minus करके दिखाते हैं. Creditors, liability, you know liability, creditors, debtors are asset, creditors L लिख दो, L, creditors L. Bills payable, liability. Okay. फिर देखो नीचे एडजस्टमेंट. व्हाट आर एडजस्टमेंट? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है ना ऊपर, दे वर ऑल रिकॉर्डेड, सो दे विल हैव जस्ट वन इफेक्ट. ऑल ट्रायल बैलेंस आइटम विल हैव जस्ट वन इफेक्ट, आइदर इन ट्रेडिंग और इन P&L और इन बैलेंस शीट. बट एवरी आइटम ऑफ एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट्स बिकॉज दे आर अनरिकॉर्डेड. अभी क्लोजिंग स्टॉक क्यों अनरिकॉर्डेड रह गया? अभी मैंने आपको बोला क्यों हमने एंड तक रखा, क्योंकि 31 मार्च को हम लोग वैल्यू कंपेयर करते हैं, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस क्या चल रही है, और उसके बाद उसको एंटर करते हैं फाइनल अकाउंट. बात समझ में आई? तो इसलिए 31 मार्च तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, अब रिकॉर्ड करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक. देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 32,000 दिख रहा है आपको, 32,000 क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट डू यू मीन बाय दिस 32? इस साल आपका 32,000 का गुड्स बच गया, तो आप क्या करो? व्हाट विल यू डू? 32,000 का पहला इफेक्ट क्या करो? सोचो, अभी किया मैंने. परचेज के अंदर पड़ा हुआ है वो, लेकिन ये साल को बिलोंग नहीं करता है, तो क्या करना है? ऐड करना है कि माइनस करना है? बोलो. माइनस फ्रॉम क्रेडिट. माइनस फ्रॉम परचेज, राइट. परचेज में से कम करने के बदले कहां दिखाते हो आप? क्रेडिट में दिखाते हो. बात तो वही हुआ. डेबिट में दिखाओ कोई आइटम, या क्रेडिट में से माइनस, या क्रेडिट में दिखाओ डेबिट में से माइनस, इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो फॉर प्रेजेंटेशन अगेन, क्लोजिंग स्टॉक को परचेज में से माइनस मत करना, उसको कहां दिखाना? ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पे. तो राइट देयर TC, trading credit. One effect is trading credit. And what is the second effect? ट्रेडिंग में से तो निकल गया, कहां दिखे? बैलेंस शीट एसेट, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर काम आएगा. एसेट एक्सपेंस का लॉजिक पता है ना, अभी नेक्स्ट ईयर यूज होगा तभी काम आएगा. So every adjustment will have two effects. Every item of trading, अपना trial balance will have just one effect. Every adjustment will always have two effects. Okay, because unrecorded transaction. One debit effect, one credit effect. Double entry system. One debit effect, one credit effect. तो trading को credit किया, that is one effect, और stock debit हुआ, that is asset. तो asset बढ़ गया, तो balance sheet asset, that is second effect. ओके, तो एक्सपेंस कम हुआ और एसेट बढ़ गया. तो ट्रेडिंग क्रेडिट वन इफेक्ट एंड बैलेंस शीट एसेट सेकंड इफेक्ट. याद रहेगा दो इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग, व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट विच साइड? बोलो. क्रेडिट साइड कि डेबिट साइड? क्रेडिट साइड. क्रेडिट का मतलब डेबिट में से माइनस हो रहा है, इस साल को बिलोंग नहीं कर रहा है. एंड एसेट्स,
वाई एसेट्स नेक्स्ट ईयर बेचोगे तो पैसा मिलेगा. ओके, चलो ड्रॉ कर लो फॉर्मेट. ऑल ऑफ यू ड्रॉ द फॉर्मेट. Do it along with me. How will you draw? Take two sides. Take two sides. One side you will make trading and profit and loss account. One side you will make trading and profit and loss account. And one side you will make balance sheet. So this is my trading and profit and loss account. Give the heading as in the books of Kalpana Traders. In the books of Kalpana Traders, So we have to use two sides, na? two sides. This is one side, first side, trading account for the year ended 31st March 9. 31st March 2009. Headings are particular, amount. Why two columns for amount? That is inner and outer column. Inner and outer column. Inner and outer column. Okay. Why inner and outer column you will come to know. ये sum में जरूरत नहीं है. Next sum से आएगा adjustments, more and more adjustments. So we will record those items in the inner column and then in the outer ones. So two columns. फिर इधर है ना 1/3 जितना स्पेस छोड़ देना 1/3 और 1/3 के नीचे यहीं पे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके P&L स्टार्ट कर देना. तो इधर हेडिंग दे देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009. Profit and loss account for the year ended 31st March 2009. इसका भी फॉर्मेट सेम है. Particulars, amount, particulars, amount. Okay. फिर P&L will be around 2/3 of your side. उसके बाद नीचे ड्रॉ करना है. नीचे मतलब नेक्स्ट साइड, सॉरी तुम्हारा नेक्स्ट साइड. ये 1/3, ये 2/3. जजमेंट लेके करो. 1/3, 2/3 इतना स्पेस ट्रेडिंग P&L के लिए. और फिर राइट हैंड साइड पे मेक बैलेंस शीट. राइट हैंड साइड पे मेक बैलेंस शीट. लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रेडिंग P&L. राइट हैंड साइड पे मेक बैलेंस शीट. आगे पीछे मत करना. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. Left hand side, right hand side do, so it will be better. So right hand side pe you draw the balance sheet. So this is balance sheet as on 31st March 09. Balance sheet as on 31st March 09. Okay. इधर लिखना है पर्टिकुलर, मत लिख देना गाय गाय में. Many students do this silly mistake. They write particular in balance sheet. Balance sheet is not an account. It is a statement. तो उधर हमेशा लिखना है liabilities and assets. Liabilities and assets. Draw this. Okay. ये पूरा पार्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा. ये पूरा पार्ट आपका राइट हैंड साइड पे आएगा. Is this clear? Trading and profit and loss account on the left hand side and balance sheet on the right hand.
ओके और एक चीज का ध्यान देना, मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है, इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, देखो मैंने क्या लिखा है. It is trading account for the year ended and profit and loss account for the year ended. Can you see that? But balance sheet में मैंने क्या लिखा है? Balance sheet as on. Can you see that? ये दोनों के लिए मैंने लिखा है for the year ended और इसके लिए लिखा है as on. इसका कोई मतलब बता सकता है मुझे? Yeah, because we can make balance sheet at any time of the year. Yes. So we वो तो- write the date. Yes, and वो तो ट्रेडिंग पीएनएल भी कभी भी बना सकते हैं. But trading P&L we make at year end. दोनों. On that date, the balance sheet is that. Right. And what about trading PNL? That is for the whole year you calculate. हाँ, see, trading and PNL is for the whole year. मतलब क्या कि उसके अंदर पूरा साल का इनकम और एक्सपेंस पड़ा हुआ है, फुल ईयर का. बैलेंस शीट में आपको फुल ईयर का फर्नीचर नहीं दिखेगा. एज ऑन दैट डेट, उस डेट का वैल्यू, लास्ट डेट पे फर्नीचर कितना है वो दिखेगा. ये नहीं बताया कि साल भर से पहले 1000 का खरीदा, फिर 2000 का, फिर 3000 का, 4000 का, 5000 का, ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा. वो दिखाएगा बैलेंस शीट के डेट पे कितना फर्नीचर था. आपने 10 का खरीदा हो, 2 का बेचा हो तो 8000 दिखाएगा. आर यू गेटिंग दैट? बट परचेज एंड सेल तो P&L कभी भी. ट्रेडिंग एंड पीएनएल पूरा साल का रिजल्ट देखा है. पूरे साल का परचेज, पूरे साल में कितना परचेज किया, पूरे साल में कितना बेचा, पूरे साल में कितनी सैलरी पे की, पूरे साल में कितना रेंट पे किया, पूरा दिखाता है. But you said कि it can be made at any time of the year. Then how it can show हाँ, तो पूरे if you साल make it का? at the end of 3 months, so 3 months का full expense, 3 months का full income, but balance sheet at the end of 3 months ना, वो क्या दिखाएगा? वो ये नहीं दिखाएगा कितने का मशीन खरीदा, कितने का बेचा, खरीदा बेचा. एज ऑन दैट डेट कितना मशीन, कैपिटल कितना लाया, कितना ड्रॉइंग, वो नहीं, कितना एज ऑन दैट डेट कितना कैपिटल. गेटिंग इट? लोन लिया है 50,000, चुका दिया 20,000, वापस लिया 50, वापस 20, वो सब नहीं दिखाया. एंड ऑफ दैट डेट कितना लोन पड़ा हुआ है, देना कितना बाकी है, एज ऑन दैट डेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो योर ट्रेडिंग एंड पीएनएल, दे आर नॉट स्टैटिक, दे आर फ्लो कंसेप्ट. वो पूरे साल का डिटेल दिखा रहा है. whereas बैलेंस शीट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, वो एक दिन का डेटा दिखा रहा है, वन डे का. ओके, उस दिन आपके वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है, उस दिन की वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है. और ट्रेडिंग पीएनएल पूरे साल का इनकम और एक्सपेंस. keep that in mind. Let's begin with the problem. Sir, wait 1 minute. Only one problem for today. सबसे इंपॉर्टेंट आज का चीज था स्टॉक. अगर स्टॉक का कंसेप्ट बैठ गया तो वेल एंड गुड, परफेक्ट एकदम. नहीं बैठा है तो वापस वीडियो रिकॉर्डिंग आएगा, थोड़ा पार्ट स्टॉक का रिपीट देख लेना. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये अच्छे से फिट हो गया तो आगे के एडजस्टमेंट्स भी अच्छे से फिट हो जाएंगे. नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक. और मैंने एक चीज लिखा है यहाँ पे, ट्रेडिंग और पीएनएल में डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. कैन यू सी दैट? बैलेंस शीट में मत लिखना डेबिट क्रेडिट. व्हाई? बिकॉज ट्रेडिंग एंड पीएनएल आर लेजर अकाउंट्स. बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट. बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट. राइट? दिस अ स्टेटमेंट. लेट्स स्टार्ट. साथ में करते जाओ. स्टॉक ऑन 1/4/2008, वेयर इट शुड गो, बताओ फटाफट. स्टॉक ऑन 1/4/2008, that is what? ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? तो ट्रेडिंग डेबिट, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग स्टॉक. रिकॉर्डेड आइटम, ट्रायल बैलेंस, वन इफेक्ट. तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, गो टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक. फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, that is how much? 30,000. 30,000 in the outer column. 30,000 in the outer column. टू ओपनिंग स्टॉक. लेजर अकाउंट है तो 2 आएगा.
एंट्री क्या है इसकी? तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर किया हमने। परचेजेस, परचेजेस कहाँ जाएगा? बोलो क्या क्या मार्किंग किया है परचेजेस? वेयर शुड आई राइट परचेजेस? हेलो, ट्रेडिंग डेबिट। ट्रेडिंग डेबिट टू परचेजेस, पूरे साल का खर्चा। अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट बट इट्स नॉट नीडेड इन फाइन। टू परचेज अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ओके, नहीं भी लिखा तो चलेगा डायरेक्टली। टू परचेजेस 85,000 होना चाहिए लेजर में, बट फाइनल अकाउंट्स में चलता है। टू परचेजेस 85, एक मिनट है, सॉरी, 1 minute, cut it. Purchases, inner column you will write 85,000, inner column 85, इधर लिखने का माइनस रिटर्न्स, माइनस रिटर्न्स। सेम वे सेल्स माइनस रिटर्न्स, सेल्स माइनस रिटर्न्स, परचेज माइनस रिटर्न्स, सेल्स माइनस रिटर्न्स। तो परचेज इसमें लिख लो 85,000। ये कौन सा रिटर्न में सब्ट्रैक्ट करूंगा परचेज में से? परचेज रिटर्न, इसलिए मैंने इनर कॉलम में दिखाया, फिर सब टोटल आउटर में दिखा दूंगा, नेट नेट परचेज। सेल्स इसके लिए पहले इनर कॉलम, फिर रिटर्न्स माइनस, फिर आउटर कॉलम। Okay? So whether we have purchase returns or sales returns or not, we have to compulsorily write returns. It's better if you write, क्योंकि मेजोरिटी सम्स में होगा, फिर आप नील कर सकते हो, नहीं है रिटर्न्स तो नील कर सकते हो, ओके। या फिर डायरेक्टली फिर उस केस में आप परचेज सेल आउटर कॉलम में भी दिखा दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सो इनर कॉलम किसके लिए है? मेनली कैलकुलेशन के लिए, आउटर कॉलम में फाइनल वैल्यू प्लस माइनस कर। Next item we have is return inward. What will you do return inward? What is return inward? Sales return. तो क्या करते हो sales return? Subtract from sales. Subtract from sales. Subtract from sales. Buy sales minus sales returns. Then we have wages. Where you will write wages? Wages कहाँ जाएगा आपका? ट्रांसफर होके ट्रेडिंग डेबिट, लिखा हुआ है आपने टीडी, डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्शन रिलेटेड। सैलरीज, वेर यू विल राइट सैलरीज? पीएनएल डेबिट। सैलरी, अच्छा, पीएनएल में एक लाइन छोड़ देने का, पहला वाला, दिस फर्स्ट लाइन यू लीव। व्हाई एम आई लीविंग दिस फर्स्ट लाइन? स्टार्ट कहां से होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? फॉर्मेट के वक्त बताया था। ओपनिंग स्टॉक। नहीं, ओपनिंग स्टॉक तो इधर आ गया ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग का खर्चा। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। सो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए एक लाइन छोड़ दो, उसके नीचे से स्टार्ट करो। टू सैलरीज, टू सैलरीज, आउटर कॉलम दैट इज 6,600, कुछ प्लस माइनस नहीं है तो सिंपली आउटर कॉलम, सिंपली आउटर कॉलम। देन कैरेज इनवर्ड, वेयर यू विल शो कैरेज इनवर्ड? Trading debit to carriage inwards, that is trading debit, purchase related expense. Carriage outward, where you will show carriage outwards? Carriage outward कहाँ दिखेगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू कैरेज आउटवर्ड्स, लिखा हुआ है अपने पीएलडी, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस। टू बाय लिखना मत भूलना, लेजर अकाउंट्स हैं। पावर एंड फ्यूल, वेयर यू विल शो पावर एंड फ्यूल? पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस टू पावर एंड फ्यूल, आउटर कॉलम 700। एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा? वेयर यू विल राइट एडवर्टाइजमेंट? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पूरे साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा टू एडवर्टाइजमेंट, दैट इज हाउ मच? 1,300। outer column. Office expenses
We'll also go to profit and loss account to office expenses. Office का खर्चा है तो P&L debit 400 outer column. Printing and stationery. Where you will write printing and stationery? Printing and stationery will also come in P&L debit, right? Office का खर्चा है तो to printing and stationery. ये क्या कर रहे हैं हम लोग? What are we doing? We are bringing all the expense and all the incomes to one single place. Can you see that? साल के एंड में जितने लेजर अकाउंट थे एक्सपेंस और इनकम के सब बंद होके आ रहे हैं ट्रेडिंग में और P&L वन बाय वन. Are you getting it? To calculate your annual profits or losses. Commission. Which commission is that? Now it's clear, all of you. Is it commission paid or received? Paid. So commission paid है तो P&L debit. To commission. To commission. How much is to commission? 1,000. Outer column 1,000 rupees. Is that clear? Outer column 1,000 rupees. Furniture. Where you will put furniture? Assets. Assets. यहाँ तक हो गया सबका? All of you are with me? Okay. Yes, sir. Go to asset. Go to balance sheet asset. Assets में लिख देना है furniture. फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी साल के एंड में? आपके पास 8,500 का फर्नीचर पड़ा हुआ है. दैट इज द मीनिंग. फिर आता है मशीनरी. मशीनरी कितना दिया है? मशीनरी 30,000. दैट इज ऑल्सो एसेट. साल के एंड में 30,000 का मशीन पड़ा है आपके पास, आपका एसेट है. फिर कैश इन हैंड, दैट इज ऑल्सो एसेट. साल के एंड में इतना कैश पड़ा हुआ है 1,200 आपके पास. फिर आता है ड्रॉइंग्स. व्हाट विल यू डू विद ड्रॉइंग्स? व्हाट विल यू डू विद ड्रॉइंग्स? Subtract from capital. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल. तो कैपिटल इज द फर्स्ट लायबिलिटी और उधर से ड्रॉइंग्स माइनस. ड्रॉइंग्स भी प्लस माइनस करना है ना तो इनर कॉलम, प्लस माइनस करना है तो इनर कॉलम. ड्रॉइंग्स को ब्रैकेट में दिखा दो, ये माइनस करना है, प्लस माइनस करना है तो इनर कॉलम. नेट रिजल्ट इन द आउटर कॉलम. जैसे मालूम है परचेज माइनस रिटर्न, सेल्स माइनस रिटर्न, इनर कॉलम में दिखाया था, वैसे ये इनर कॉलम में दिखा के नेट रिजल्ट इन द आउटर कॉलम. कैपिटल लिस्ट ड्रॉइंग्स. व्हाट आर डेटर्स? व्हाट आर डेटर्स? डेटर्स आर एसेट्स. पैसा लेना बाकी है. व्हाट डज दिस इंडिकेट? 7,500. साल के एंड में अपने को डेटर से कितना पैसा लेना बाकी है? तो 7,500. ये सब हमारे एसेट है. इनको बेचोगे तो पैसा मिलेगा. डेटर से पैसा मिलेगा, फर्नीचर से इतना बेचोगे तो मिलेगा, मशीनरी को बेचोगे तो मिलेगा. कैश तो पैसा ही है और लायबिलिटी मतलब इतना चुकाना बाकी है. योर एंड. इधर बिल्स रिसीवेबल, दैट इज ऑल्सो एसेट. इससे भी कितना पैसा लेना बाकी है? बिल्स रिसीवेबल से 2,500. 2,500 बिल्स रिसीवेबल से लेना बाकी. क्लियर? फिर आ जाओ क्रेडिट साइड पे. क्रेडिट साइड पे क्या दिया हुआ है? कैपिटल. हाउ मच इज कैपिटल? 35,500. तो इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि ये माइनस करना बाकी है, इनर कॉलम में लिखना 35,500, क्योंकि 800 रुपया माइनस करना है आपको. कैपिटल ओनर का कितना पैसा डाला था उसने बिजनेस में अभी तक? 35,500. इस साल के एंड में 35,500 डाला हुआ है, जिसमें से उसने 800 रुपए निकाल लिया. दैट इज द मीनिंग. 35,500 में से 800 रुपए ही है विड्रॉ. तो इस नेट कैपिटल बाद में करेंगे आउटर कॉलम आराम से. फिर डिस्काउंट रिसीव्ड. वेयर यू विल शो डिस्काउंट रिसीव्ड? बोलो. P&L क्रेडिट. P&L क्रेडिट तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1,500. नो प्लस नो माइनस आउटर कॉलम. By discount received in your P&L account credit side. In your P&L account credit side. Okay. Only income, that is sales, that will go in trading. उसको छोड़ के सब P&L.
Sales 127,500. Where will show sales? Sales will go to trading credit 127,500. दिख रहा है आपको? Sales will go to trading credit, inner column, biggest income of the year, only income in trading account. Return outward का मतलब, what is the meaning of return outward? What is the meaning of return outward? Purchase return. तो क्या करना है? Purchase में से minus. Can you see that? Purchase में से minus. Return outward is purchase return, that is less from purchase. Creditors. Where you will write creditors? Where you will write creditors? What are creditors? Liabilities. तो कैपिटल के नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना, 2-3 लाइंस, 2-3 लाइंस छोड़ के लिख दो. क्रेडिटर्स 15,000, पैसा देना बाकी है. Okay, because there will be in future adjustments, so always you leave 2-3 lines after your capital and then you write the items. Creditors are 15,000. Bills payable. Where you will write bills payable? Bills payable are also liability like your creditors. इतना पैसा देना बाकी है bills का. So creditors and bills payable both are liabilities. बाकी ये सब asset है. इतना पैसा आना बाकी है, इतना पैसा देना बाकी है. Once you have done with trial balance, check the adjustments. What are the adjustments? There is only one adjustment. What is that adjustment? Check. कितना adjustment है? एक ही है. What is that? Check. Closing stock. Closing stock. Closing stock मतलब साल के एंड में इतना स्टॉक बच गया. ओके, तो हमने कंपेयर किया होगा मार्केट वैल्यू के साथ, तो मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम नहीं है. 35,000 पे रिकॉर्ड करना है, वैल्यू दे दिया आपको 35,000. क्या करना है इसको? ट्रेडिंग का खर्चा है कि नहीं, बताओ मेरे को. इस क्लोजिंग स्टॉक दिस ईयर का एक्सपेंस या नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस? क्लोजिंग स्टॉक कौन से साल को बिलोंग करता है? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है. इस साल बच गया, नेक्स्ट ईयर काम आएगा. तो मैं क्या करूंगा? ट्रेडिंग में से उसको निकालूंगा. तो परचेज में से माइनस करने के बदले मैं इसको कहां दिखाऊंगा? क्रेडिट साइड. इट इज वन एंड द सेम. माइनस करने के बदले जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन वी शो इट ऑन द क्रेडिट साइड. बेटर प्रेजेंटेशन के लिए वी शो इट ऑन द क्रेडिट साइड. ओके, तो परचेज में से माइनस करने के बदले आई विल शो इट ऑन द क्रेडिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 35,000. दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट. यहां से रिमूव किया, 32 है, सॉरी, यहां से रिमूव किया. बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000. व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? इधर से निकाला तो कहीं तो डालना पड़ेगा, नहीं तो टैली नहीं होगा. डबल एंट्री चाहिए, डेबिट एक क्रेडिट. बैलेंस शीट. क्यों बैलेंस शीट? नेक्स्ट ईयर काम आएगा ना. नेक्स्ट ईयर यू विल सेल इट, तो दिस विल बिकम एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर. जस्ट लाइक एसेट एंड डेप्रीसिएशन. इमेजिन दिस इज 32,000 का एसेट एंड नेक्स्ट ईयर इसको डेप्रीशिएट करना है. फर्क सिर्फ इतना है, डेप्रीसिएशन पीएनएल में जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा एज एन एक्सपेंस. गॉट इट? अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स ये साल रिमूव किया, नेक्स्ट ईयर में काम आएगा. इज दिस क्लियर? दैट कंप्लीट्स योर पोस्टिंग पार्ट. दिस इज योर फर्स्ट सन चिंटू सा. अभी इसको करना है अपने को टैली. ओके, वी नीड टू क्लोज डाउन द अकाउंट. सबसे पहला विच अकाउंट यू विल क्लोज? सबसे पहला विच अकाउंट यू विल क्लोज? ट्रेडिंग अकाउंट, ऑब्वियसली. गॉट इट? यू विल फाइंड बैलेंस करते थे ना, बैलेंस. हेलो, बैलेंस मालूम है? भूल गए बैलेंस. लेजर का बैलेंस, ये लेजर का बैलेंस है. विचएवर साइड इज ग्रेटर उसका टोटल, छोटा वाला साइड में से छोटा टोटल बड़ा टोटल में से माइनस करो, बैलेंस टोटल. तो ये आउटर कॉलम में लिख दो पहले. परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज 84,000. सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज 1,25,000. Purchase minus purchase return, sales minus sales return. Now you do the total. Looking at the sides, can you tell me which side is greater? Credit side is greater.
सो क्रेडिट का टोटल दोनों बाजू लिख लो 1 लाख कितना आता है ये 1,57,000 is the total 1,57,000 is the total. So this is the balance. Will you write two balance CD? What is this balance? Is this profit or loss? Gross profit बोलते हैं ना gross profit या gross loss. What is this? Gross profit या gross loss? Which side is greater? No, debit side is greater. Credit side means income side, right? Yeah, So it's profit, right? Or it's a loss? profit. All of you agree on that? आप लोग बोल रहे हो तो profit लिख रहा हूँ, ठीक है? So credit side is greater than debit side. So income minus expense. 1,57,000 minus the debit. Minus the debit. इतना income हुआ, इतना खर्चा हुआ. अब closing stock income नहीं है, confuse मत हो जाना. Closing stock is a reduction of expense. खाली purchase से minus करने के बदले मैंने credit में दिखाया हुआ. Closing stock is indirectly a reduction of expense. Okay, just like purchase returns. But for presentation, we are showing it on credit side. So income minus expense, what is my profit now? This total 1,14,000, 1,19,000, 300, 1,21,200, 121,200. So this is 45,800 आ रहा है. 45,800, please check. 114, 119, 121,200, 156, 157 बराबर है. 35,800 का ग्रॉस प्रॉफिट है. क्या लिखना है ध्यान से देखना है यहाँ पे. टू ग्रॉस प्रॉफिट CD carried down. To gross profit carried down. To gross profit CD. Don't write balance. Don't write balance. It is to gross profit CD. Trading account का result 35,800 to gross profit CD. ये ग्रॉस प्रॉफिट P&L में बन जाएगा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD. बैलेंस मत लिख देना. बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 35,800. बताया था कल, याद है? ट्रेडिंग जहां खत्म होता है P&L स्टार्ट होता है. इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी द फर्स्ट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड. ये ग्रॉस प्रॉफिट CD, ये ग्रॉस प्रॉफिट BD बैलेंस. ये हुआ ट्रेडिंग बंद. अभी करो P&L को बंद. P&L को बंद करो. टेल मी विच साइड ऑफ P&L इज ग्रेटर नाउ. चेक. कौन सा साइड बड़ा है P&L में? विच साइड ऑफ P&L इज ग्रेटर? क्रेडिट साइड. तो 35,800 प्लस 1,500 टोटल. इसको भी ले लेने का, ग्रॉस प्रॉफिट को भी ले लेने का. 35, 36,800, 37,300, 37,300, 37,300. ये डिफरेंस आ रहा है. तो कैसे करने का? क्रेडिट माइनस डेबिट. क्रेडिट माइनस डेबिट. अगेन नाउ ट्रेडिंग बंद हो चुका है. अभी ट्रेडिंग को भूल जाना. अभी फोकस ऑन P&L. ट्रेडिंग बंद हो गया है, अभी P&L पे फोकस करो. क्रेडिट माइनस डेबिट ऑफ P&L. सबको समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले ट्रेडिंग बंद हुआ, अभी P&L को बंद कर रहे हैं. P&L का डिफरेंस क्या आ रहा है? ये देखो, ये टोटल 6,600, 6,800, 8,100, 8,500, 9,300, 10,300. 37,300 minus 10,300 will give me 27,000. What is this 27,000? Profit Net or profit. net profit? This is what is called as net profit. We'll write here to net profit carried down. To net profit carried down. To net profit carried down. ब्रैकेट में क्या लिखने का? ट्रांसफर्ड टू कैपिटल. ट्रांसफर्ड टू कैपिटल. ट्रांसफर्ड टू कैपिटल. नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन. ट्रांसफर्ड टू कैपिटल. सो प्रॉफिट जो भी होता है अल्टीमेटली किसको बिलोंग करेगा? प्रॉफिट्स बिजनेस का प्रॉफिट ओनर. मुझे एक बात बताओ, ये नेट प्रॉफिट में कौन सा इनकम कौन सा एक्सपेंस है? ओनली इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ऑल इनकम ऑल एक्सपेंस?
ऑल इनकम ऑल एक्सपेंस। ट्रेडिंग P&L पूरे साल का जितना मेहनत किया था उसका नेट रिजल्ट इज 27,000 का प्रॉफिट। ओके, किसको बिलोंग करेगा ये प्रॉफिट? किसको बिलोंग करेगा ये प्रॉफिट? कैपिटल को। तो ये नेट प्रॉफिट दिख रहा है, आई विल ऐड इट अप टू माय कैपिटल। कैपिटल में प्लस नेट प्रॉफिट, कैपिटल में प्लस नेट प्रॉफिट 27,000 ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये रहा नेट प्रॉफिट, इधर का बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में ऐड। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट गया P&L में, नेट प्रॉफिट जाएगा कैपिटल। कैपिटल में ओनर को बिलोंग करता है, ऐड करो और यहाँ पे क्या मिलेगा? आउटर कॉलम 35, 55, 62, 61, 700 आ रहा है, आई थिंक 61,700, इज दैट राइट? Yes. 61,700। अब अल्टीमेटली बैलेंस शीट देखो, आपने मेहनत की इतने साल में, पूरा प्रॉफिट कमाया 27, एसेट में वो प्रॉफिट कहाँ होगा? ये 27 का प्रॉफिट एसेट साइड कहाँ पड़ा होगा? कैश। कैश में पड़ा होगा, बराबर है। लेकिन कैश तो कितना सा है? 1200 ही है, कैश में नहीं है। कहाँ पड़ा होगा फिर? कैश कैसे 1200 है कैश में अगर प्रॉफिट हुआ तो? डेटर्स। डेटर्स में हो सकता है, फर्नीचर में हो सकता है। आपने क्या किया होगा? कैश ऐसे ही थोड़ी रखा होगा, फर्नीचर खरीदा होगा, मशीन खरीदा होगा, थोड़ा गुड्स खरीदा होगा, स्टॉक में हो सकता है, या डेटर को बेचा होगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि जितना प्रॉफिट हो उतना कैश होना जरूरी नहीं है। कैश तो आपके कंट्रोल में है, आप कुछ भी करना है कर सकते हो कैश के साथ बिजनेस। आर यू गेटिंग इट? तो जितना प्रॉफिट है उतना सामने कोई ना कोई एसेट में प्रॉफिट इन्वेस्टेड होगा। तो अभी आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? योर बैलेंस शीट शुड बी हैविंग सेम टोटल और डिफरेंट टोटल? Same total. Your balance sheet should tally. Always your assets will be equal to your liabilities. Check करो. 67, 60. Sorry. Hello. What? 81,700 आ रहा है. दूसरा साइड भी चेक करना है. आलसी पने में खाली एक साइड करके मत छोड़ देना. 8,500 plus 38, 38,500, 39,700. 40,000, 47,200, 49,200, 49,700, 49, 79,700, 81,700. Yes, it tallies. 81,700, it tallies. Is this clear? तो आपका बैलेंस शीट टैली होना मतलब आपने पूरा फाइनल अकाउंट का सम परफेक्टली किया है। वेटेज है 15 मार्क्स इन योर 11th स्टैंडर्ड एंड 12 मार्क्स कंपल्सरी 12 मार्क्स इन योर बोर्ड्स। तो ओवरऑल वेटेज 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का वेटेज इन योर 12th स्टैंडर्ड। This was your problem of final accounts. Revise it. Revise the closing stock, opening stock. First adjustment revise करना. आज मैंने adjustments में से first adjustment किया है खाली. Just revise that. Next lecture more such sums, more adjustments. We meet on Tuesday for the next lecture. Before that Monday for the test. Okay. All the very best. Keep on practicing. कुछ doubts है तो रुको, otherwise you can leave.